you must know that it's very important, rather indispensable, to study those four magical letters LIFE, live. Hello, ladies and gentlemen. I, Shreya Katyal, welcome you all to today's talk. I'm at the Marva Studios, and it's the second day of the 4th Global Literary Festival. So today I'm going to again talk to most eminent people who have landed up on this gracious occasion and gather lots of knowledge for you. We are in conversation with a very celebrated director, Vivek Agnihotri. Okay, sir, we would like to know from your side that आपने just share करा और मैंने सुना ये चीज़ कि you have done a lot of work. In spite of that, you just termed this thing that success, happiness happened to me 3 months back. What is the story behind that? सी सक्सेस, मैं पैसे को सक्सेस नहीं मानता, मैं फिल्में हिट होने को सक्सेस नहीं मानता, क्योंकि उसमें आपका क्या है. लेकिन जब मेरी बुक आई अर्बन एक्सेल्स, तो दिट वाज एब्सोल्युटली माय रिसर्च, माय सैक्रिफाइस, माय हार्ड वर्क, एंड व्हेन इट बिकेम, everybody recognized the theory of urban excels, and when the real urban excels got arrested in last 1 month, then I realized that this is the real success. To me, success is giving something back to the society, contributing to the society. अब थोड़ा सा हमें एक मैसेज दे दीजिए प्लीज़ यूथ के लिए, ताकि ये लोग भी इंस्पायर हुए, बडिंग डायरेक्टर्स, राइटर्स, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्केल्ड दोज हाइट्स. My only message is read a lot. जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा, और आप खूब ट्रैवल करिए. जितना आप ट्रैवल करेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल. और फिल्म्स में अगर आना है तो अगर आपको दूसरे कैरेक्टर्स और लोग नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा, है ना. तो इसलिए आपको ट्रैवल करना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मैं सिर्फ ये 2 ही सलाह देता हूँ, और उसके बाद जो करना है करो. कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है. Thanks for inspiring us and talking to MSTV. Now I'm in conversation with the High Commissioner of the Kingdom of Lesotho, His Excellency Bothatha. Hello sir, welcome to Marva Studios today and the 4th Global Literary Festival. Thank you very much, and I really appreciate it when you give me this opportunity. So we would like to know from your side that how you're feeling after witnessing this atmosphere today and swimming in the ocean of literature. Everybody is around us who are writers and poets, and there's a lot of knowledge sharing today. So how you're feeling today? I think first of all we need to begin by appreciating what literature is. It's a collection and preservation, maybe if you like, documented of ideas from the right-thinking members of the society, the people who sat down, who thought and collected ideas on day-to-day practices that will in turn or in future, leave a legacy to the coming youngsters. So as this is centered around youngsters, to learn about the people who sat down, collected ideas, brought them together in such a kind of style, then it's really amazing. It's good. It means the legacy is being kept, the history is being kept. So there will be no loss of ideas whatsoever. That's true, that's true. That means that knowledge is indispensable to human growth. Now I would like to know from your side that how do you find India and Lesotho relationship? Like how is the relationship between these two countries? We have a long history from many years ago, in a sense that we have gone through a similar kind of journey as different nations from India as well as Africa. And we normally refer to the example of Mahatma Gandhi, who was in South Africa during the apartheid regime and who joined the South Africans in the fight of the apartheid. So that is what we normally refer to as South-to-South relationship. The common practices. To make matters worse, most of us in Africa are the British colony, and equally so India is the same. So we have a lot in common that we share. Even our education system is the same, our development pattern is also the same. So that means that this is the thing that binds us and together we can grow. चलिए चलते हैं, बातचीत करते हैं राकेश बिहारी जी से आज 4th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन पर. हेलो सर, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़. तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि लिटरेचर की दुनिया आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे लिटरेरी वर्क को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे राइटर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके जैसे. तो आज आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं इस एटमॉस्फेयर में आके आज? देखिए, साहित्य जो है वो मूल्यों के संवर्धन का काम करता है, और जब इन मूल्यों के संवर्धन को आप सेलिब्रेट करते हैं तो निश्चित तौर पर
आप उन परंपराओं को, उन मूल्यों को सहेजने का एक जतन करते होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो आपका 4th ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट है, इसमें साहित्य के बहाने मानवीय मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं को इकट्ठा करने का, सहेजने का जो एक जतन है, यह काबिल तारीफ़ है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। साहित्य अगर हम आपसे जानना चाहें, साहित्य आपके लिए क्या है? आपकी क्या डेफिनेशन है साहित्य की? साहित्य एक ऐसा उपक्रम है जो हमारे भीतर के मनुष्य को जीवित रखने में हमारी मदद करता है। हम एक बेहतर मनुष्य हो सकें, उसके लिए हमें उन रास्तों पे ले जाता है जो हमारे भीतर की मनुष्यता की रक्षा कर सके, हमें बेहतर मनुष्य बना सके। तो आपकी जो ये जर्नी है लेखन की, ये कब शुरू हुई थी? क्यों चुना आपने इसे? मतलब क्या था वो जिसने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया कि मैं लेखक बनूं? देखिए, वैसे तो लिखने पढ़ने का काम मैं पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूँ और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कुछ इस तरह की थी। फिर भी अगर आप पूछें कि क्यों लिखते हैं, तो मैं कहूँगा शायद बिना लिखे में रह नहीं सकता, इसलिए लिखता हूँ। Beautiful. So that means that is the expression of his soul. So that is the oxygen for him, I can say. Writing is oxygen to him. Thanks for talking to us, inspiring us, and coming to the 4th Global Literary Festival. It's time to talk to a very celebrated writer, Mr. Pankaj Mitra. Hello, sir. Welcome to the 4th Global Literary Festival, Noida. So first of all, I would like to know from your side that writing. What is the definition of writing for you? क्या है ये चीज़ आपके लिए? राइटिंग जो है, मतलब लेखन जो है, वो मेरे लिए एक ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये मेरे लाइफ का। और मैं लिखता ही इसलिए हूँ कि और कोई दूसरा काम मुझे आता नहीं ठीक से तो इसलिए मैं लिखता हूँ। ऐसा नहीं है, एक्चुअली लेखकों को सब काम आते हैं, बट वो अपनी लाइफ डेडिकेट करना चाहते हैं लेखन में, शायद सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर लेखक लिखता इसलिए है कि उसे जो सोसाइटी का जो प्रेजेंट मॉडल है उससे वो संतुष्ट नहीं रहता है। इसलिए वो चाहता है कि एक वैकल्पिक, एक अल्टरनेटिव मॉडल उसके सामने हो। एक अपने लेखन के ज़रिए वो एक मॉडल रखता है पूरे सोसाइटी के सामने कि हमारे दृष्टि में, हमारी नज़र में समाज इस तरह का होना चाहिए। हर आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन चाहिए होती है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप वो इंस्पिरेशन एज अ राइटर कहाँ से लाते हैं? क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? इंस्पिरेशन की बात करें तो बहुत सारे जो पुराने लेखक हैं उनकी चीज़ें पढ़ पढ़ के हम लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं। और उसके प्रेमचंद हैं, रेणु हैं, ये हिंदी में कहें तो, अंग्रेज़ी में बहुत सारे लोग हैं। तो तमाम लेखकों से प्रेरणा तो मिली ही, लेकिन बड़ी प्रेरणा इससे मिलती है कि जो हमारे समाज का जो बहुत ही पिछड़ा तबका है, बहुत ही जो जिसको गांधी जी कहते थे कि कतार का आखिरी आदमी है, उनके जो दुख तकलीफ़ उनकी जो देखते हैं हम लोग, तो उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनका जीवन कैसे बदले, इनके जीवन के प्रति कैसे एक सेंसिटाइजेशन हो समाज में, उनके दुखों के प्रति ज़्यादा सिंपैथी रखें लोग, और ये काम लिटरेचर करता है। So what I could infer is that sensitivity is very important for a writer to write, otherwise he cannot touch hearts. I would like to have a message from your side for all the budding writers over here and all the people who are watching us today. अपने आसपास को ज़रूर देखें, और जो लोग ख़ास तौर पे जो दबे कुचले हाशिए पर के जो लोग हैं, जिनको जो विकास की जो एक दौड़ है उससे जो पीछे छूट गए हैं, उन लोगों को देखें और उनके समस्याओं के प्रति ज़्यादा सेंसिटाइज करें समाज को, लोगों को, अपने मित्रों को। और अगर हो सके तो लेखन से भी उसका ज़रूर, अपने लेखन में उन लोगों को ज़रूर पोर्ट्रे करें। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। What a beautiful message. I think you all are going to keep this in mind. Read, write and express, because it's a sin if knowledge is suppressed. That's all for today in today's talk. I'm sure that you have gathered a lot of knowledge from all these dignitaries. इनकी बातों को सिर्फ सुनिएगा नहीं, अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर फिर आऊँगी एक और इवेंट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए टुडेज़ टॉक और कनेक्टेड रहिए MS TV के साथ।